7 to 10 years if you stay invested, literally बोल सकता हूँ हमने कभी छप्पड़ फटते नहीं देखा, शायद छप्पड़ फट जाएगा। हमें लगता है यार अब पैसा कमा लिया, शांति से बैठ जाते हैं, यहाँ पे तो और है। अब उसको कैसे क्या इन्वेस्ट करना है। मेरी टेक होम सैलरी एज यंग मेजर was Okay. just 32,000 rupees और मैंने 10,000 की SIP यानी 1/3 ऑफ माई सैलरी आई पुट इन दी SIP। हर शायद 15 दिन में और 1 महीने में लड़ाई होती थी, खाना खा लें या SIP खा लें। How did you thought that okay you can join your father's business and get into finance? Oh, firstly, I was poached in by him. It was he poached me into it. I just didn't know he was playing with my mind. That IIM का पॉलिटिक्स आया क्या? father politics बोलते हैं. हमें तो आज भी नहीं मालूम है मी टाइम क्या होता है, हमें आज भी नहीं मालूम है माई स्पेस क्या होता है। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं वो स्पेस जो आप लोग को हमेशा चाहिए हो। क्या बढ़िया था गुरु। आज मेरे 90% क्लाइंट 20% कंपाउंडिंग से भी ऊपर दिखते। इस देश में आज भी कई लाख करोड़ सस्पेंस में पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है, चाहे वो LIC पॉलिसी हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो। एंड एज आई वाज प्रोटेक्टिंग द नेशन, टुडे इज द टाइम टू प्रोटेक्ट द पीपल फॉर द फाइनेंस। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी एज 75 से 85 ईयर्स के बीच में, जिनका मैं इन्वेस्टमेंट आज भी कर रहा हूं। उनको क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट? Hello and welcome. We are back with another episode with two duo of father and daughter, जहाँ पे हम लोग सिर्फ पैसे के बारे में बात करेंगे और शायद आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे, कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं। Let's just get directly to them. Hello sir, how are you doing? I'm great, dear. Hi Ashmika. Hi. We are from same batch, that is from Pearl Academy, and from fashion to finance, I think we both are standing on the same platform. Let's understand how she is building the bridge between fashion to finance. And sir, I think he has served the nation and now serving the real people. It's really amazing and inspiring as well. We are absolutely honored to have you, sir, and we will understand the experiences you would have gauged. So Mansi, I've served in Indian Army for 23 years. The first posting was Siachen Glacier. I've served from 18,000 feet minus 60 degrees centigrade in the winters. And from there, when I retired, I served the nuclear command of this country. God has been kind. I was in artillery, 23 years of service. I put up my papers prematurely and went to IIM Ahmedabad, did my MBA, worked for corporate for 4 years. And probably I realized the corporate is not meant for me. There are a lot of ethical challenges and ethics is not possible to be compromised. So thinking what to do. So I started my own investment that time into mutual funds, that is in 2003. And I realized a fantastic gain out of it. So I thought probably this is the industry I must get into. And as I was protecting the nation, today is the time to protect the people for their finances. That is how this journey began. Absolutely. And if I talk about Ashmika, how did you thought that okay you can join your father's business and just skip the fashion and get into finance? Oh, firstly, I was poached in by him. It was he poached me into it. But I was working in the film space for almost 6 years. I think I reached a point where I felt like I didn't want to do this for the rest of my life, and I took a break for about 1 year, which he's very skeptical about. I was working in different places. I was working in a cafe. I did a pop-up for one of the cafes. And constantly in that entire duration, he was like, oh, if you join my business, it'll be great. And I'm like, मैं क्या करूँगी पैसों से? I have no clue. Like, I don't even have any formal education. So, I just thought of giving it a chance. Also because I felt like maybe there is merit in taking forward a business that has already been established for so many years. So was it like he was doing the same business for how many years? 8 years? Almost. 8 years. Okay. 8 years. Now 9 years. Now, 9th year is running. Yeah. So you joined on About the 1.5 year back, yeah. We can say 7th year. Yeah, 7.5, yeah. Okay. So I didn't start off immediately. Started off very slowly. Like, oh, I'll come for like once a week, twice a week, thrice a week, and now Was it's it like almost- office में सिर्फ chill करने जाते थे but काम मिलता था कि नहीं? काम कभी मुझे मिला नहीं.
he even today he doesn't give me work. That's the problem. I have to always extract it and I'll be like, acha, can I do this, or can I do this today, or then I think that's the positive point always. जब हम कोई हमें काम देता है ना, we take it as a responsibility. But अगर हम खुद extract करते हैं काम को, then we put all the efforts, creativity, and I think that comes out to be the best. yeah, I just didn't know he was playing with my mind that time. So that happened, and then of वहाँ पे course IIM का politics आया क्या, जो father politics बोलते हैं देखो इसको. ऐसा है, नहीं, मुझे इसको अपने बिजनेस में चाहिए था, हाँ, जैसे तैसे. जैसे तैसे. उसके लिए मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था मैं. सब लोग सुन लो, किसी को भी अपने daughters को business में लाना है तो they can definitely apply Yes. this. I can accept it publicly. You know, yesterday a friend of mine, a school friend of mine, was talking to me, and he's like, "Acha, you're going to office every day?" And I'm like, "Yeah." He's like, "Uncle jeet gaye." So I had decided I'm not going to put any condition for her. But today I can say for sure कि she has really worked hard. She has reached a place where I'm sure she will be in a position to take this profession herself in a due course of time. And now, after a year and a half of experience with me, now she has realized, and I also told her, one of the highest degree in this today is CFP, Certified Financial Planner, Yeah. and she's just enrolled herself for that, Oh. and she started, you see, Pursuing the Yeah, course. pursuing the course. Yeah. I didn't think I'd be interested, but I am now. I think when you are making profits and when the public around you, or I can say your clients are making profits, that's always a push, isn't it? That is, but I think what also balanced it for me is having the opportunity to do social media, because somewhere that my creative energy flew into that. And Right. then I think the more you do it, you're like, okay, you need some backing up. You can't just keep going and talking anything, right? You need to Right. know the subject. So then it started going hand in hand. And you see, for us, we are quite weak in social media at this age. So probably it was a strength which came to the profession, and she's really taking it at a very, very different level. I couldn't have imagined. और शायद मैं कोशिश करके भी वहाँ नहीं पहुँच सकता था जहाँ ये पहुँच गई है आज. So I think that's a blessing in disguise that weak portion has become now very, very strong. Absolutely. I think also client communication, right? Just making your document look better. Because with Yeah. finance, the biggest struggle is it's all numbers. And it's obvious that the people who come to us are people who care about their money, but don't necessarily have the time or energy or information to deep dive into it. क्योंकि पाथ ही किसी को नहीं पता ना, एक मैप डाउन ही हमें आई जस्ट कट डाउन एंड गो बैक टू द प्रीवियस थिंग. जैसे आप बोल रहे हो कि आपने अपने घर से ही चालू किया. आई थिंक हमारे एज में 1990s किड, हमें प्रॉपरली फाइनेंस का इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स ने नहीं दिया, बिकॉज आई थिंक दे वर ऑलवेज हेजिटेंट, और मे बी दे वर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम. तो वो घर पे कभी बात नहीं हुई. आज की डेट में फाइनेंस के बारे में घर पे बात करना बहुत जरूरी है. कैन यू एलैबोरेट लाइक हाउ I think, इम्पोर्टेंट Mansi, इज you इट? have put the nail on the head. हमारी जनरेशन और हमसे पहली वाली जनरेशन में अपने पेरेंट्स की बात करूं, दादाजीज. हाँ, तो उनके ज़माने में पहली बात तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत थे. राइट. They were so humble. They had a humble background. They had hardly anything that they were trying to really get money where they can really do something which is beyond the daily means. So, survival itself, you see, was very tough with that kind of a money. And when they started getting something, they became very, very, you see, Possessive. I can say protective about that wealth, and they Yes. never wanted to share with somebody that, oh, they've created और this वो much. दिखाने में भी हमें लगता था कि नहीं यार दिखाएंगे तो नजर लग जाएगी. Correct. इस देश में आज भी कई लाख करोड़ सस्पेंस में पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है, चाहे वो LIC पॉलिसी हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, because that generation has not told the younger generation. Yes. In my case, I sit with them in a cycle of 6 to 8 months and tell them what I have, where it is, in which form, how and when you'll be in a position to take it out. Right, right. तो उससे फायदा क्या है
कि मैंने जो भी अपनी लाइफ टाइम में किया है वो खराब नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह मेरी नेक्स्ट जनरेशन ही उसको इस्तेमाल करेगी. एब्सोल्युटली, जो मेहनत का पैसा है एटलीस्ट फैमिली तक तो आए ना. इट इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट फाइनेंस इन द फैमिली. You know, हम बात नहीं करते हैं और उसी का कारण ये है कि आज जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. एब्सोल्युटली. और even conventional saving also people don't know what to talk about investment, that is mutual fund, stocks or इसको bonds. कन्वेंशनल सेविंग्स को आप थोड़ा एक बार सिंप्लीफाइड वे में बताओ. You see, conventional saving is basically saving into FDs, RDs. probably provident fund account, RD, and उस जमाने में किसान विकास पत्र Yes. और उस तरह की चीजें होती थी. तो वो एक कन्वेंशनल सेविंग थी, सेफ थी. उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था. अगर 7 से 8-10% इंटरेस्ट फिक्स था तो वो मिलता था. आज अगर आपको सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, सो इट हैज एसोसिएटेड रिस्क, एंड देयर इज ए along with the risk there is a learning. If you combine both of them, this situation is very great. And I will tell you my journey when the time comes, that how did I really venture, and I wanted this to really go to the masses, because this is the real beneficial to everybody. Only thing is you have to need to learn how this will happen. Absolutely. I think I have not introduced your firm's name. The firm's name is called Seven Rays. Seven Rays. Seven Rays. Investment. Seven Rays Investment. Yeah. Yeah. So the firm's name is Seven Rays Investment, and I think he has more than 30 years of experience, from that discipline to now finance, and now peeking into balance sheet of every real people. And I think I'm assuming कि आपके सारे clients actually profit अब achieve कर पा रहे होंगे, इतना सब जब आपका experience जा रहा है, discipline जा रहा है. मैं आज भी अगर आप मेरे से बोलेंगे आपका इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं बोलूंगा आप तैयार रहिए, 12 से 15% कंपाउंडिंग मिल जाएगा. बट देयर इज अ जर्नी यू हैव टू लिव. Yes. It can't Patience happen. रखना पड़ेगा. It can't happen tomorrow, 1 year, 2 years, but in a cycle of 5 to 7 years it will happen. But today the way Indian economy is, और जिस तरह से स्टॉक मार्केट राइट डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली इंडिया का, आज मेरे 90% क्लाइंट 20% कंपाउंडिंग से भी ऊपर के रिटर्न पे खड़े हुए हैं. और ये जर्नी अभी शुरू हुई है इस ग्रोथ की. आई कैन रियली फेदम एंड कैन से नेक्स्ट 7 to 10 years if you stay invested, लिटरली बोल सकता हूँ, हमने कभी छप्पड़ फटते नहीं देखा, शायद छप्पड़ फट जाएगा. So you might get a growth in this industry also to a CAGR which you can't imagine. I will not put a number to it because we are not supposed to, being SEBI registered broker. But the moment you start this journey for a certain duration, all your expected goals will be well overachieved. That is the possibility. Okay, then directly let's just come to the point, and can you map down the steps to the people कि वो actually कोई salary based इंसान है, तो वो अपना saving करके उस saving को कहाँ पे invest कर सकता है, या फिर डायरेक्टली उसको इन्वेस्ट करना है, वो आप क्या सजेस्ट करोगे? एक पूरा एक मैप अगर हमें कुछ सजेस्ट करना हो. देखो, मैं जो बात करता हूँ, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, आपने ये ध्यान रखना है, जो भी आपको मंथली एवरेज आपके पास आ रहा है, थ्रू सैलरी इट इज फिक्स्ड, थ्रू बिजनेस इट इज नॉट फिक्स्ड, थ्रू फ्रीलांसिंग इट इज समवॉट फिक्स्ड, समवॉट नॉट फिक्स्ड. Right. So you have to figure out. So say salary class get 1 lakh every month, and freelancer gets 1.5 lakh every month on an average. Right. And the business class gets between 1 lakh to 2 lakh. So if you put it, average is 1.5 lakh. अब उस एवरेज के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो किसी महीने 1 लाख मिलेंगे, किसी महीने 2 लाख मिलेंगे. That discipline you have to maintain. So I say, when you are bachelor, not much of a responsibility, you are staying with your parents, not much of expenses, 40% of take home salary or remuneration or freelancing fee or the business should be saved, out of which 30% should go towards the investment and 10% should go for emergency and short and mid-term baskets. Okay. So this is the first step. If you are married and
both of you are working, again the 40% rule will apply. But if you are married and only you are working, then 25% take home should be saved, 20% should be invested, and 5% should go for short and mid-term basket and the emergency basket. Now, these basket, I think she will explain better than me. Yeah, I think there are No. like 3 basket rule or something like that. Yeah, so he usually talks about the three basket concept. So there's three baskets. One is long term investment, short term and mid term investment, and emergency fund. Okay. So what we talk about is long term should be things that are that are for your, say, retirement funds, or something which is a goal which is, say, post 3 to 5 years is what you want to achieve. Hmm. So your money for that should go into the long term basket, which can be through mutual funds, or there are various ways. Yeah, stocks, mutual funds, Yeah. bonds, and of course, with your risk profile, various other financial products can also be suggested Added. to you. Short term and mid term will basically be all of your indulgence, I would say. That's how I like to say it. Your vacations, you want to buy an expensive shoe, you want to uh, just take a break, whatever, all of those things can come into a short term and mid term. For that, you have to invest differently. And when it comes to emergency fund, it should basically be 8 to 12 months of your income, monthly income, Okay. for a situation like COVID, or say there is suddenly a loss of job, or you can eventually also use it for, say, a medical emergency or any of that. Any of that. So these are the three baskets basically. You want Okay. to add something? No, I think this is perfectly explained. Uh, the only irony is, will you be able to create all the three I baskets think together? this is like too much, and it needs too much of discipline as Yes. well. Yes. So it takes a journey to Yeah. create those baskets. Now I'm understanding why you are actually focusing on journey, because when I was hearing out Ashmika, it is like full discipline thing, and हमें लगता है यार अब पैसा कमा लिया, अब शांति से बैठ जाते हैं, यहाँ पे तो और है, अब उसको कैसे क्या इन्वेस्ट करना है. Yeah, like when Okay. when I was trying to make those goals for myself, I was like, ये तो होएगा ही नहीं. But yeah, I think you have to slowly and very slowly, like it's not going to happen instantly, but you have to. ठीक है, आई थिंक ये जर्नी को हम और सिंप्लीफाइड वे से समझेंगे. आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे स्टार्ट की? बिकॉज आई थिंक वो तो पापा ने ही दी होगी. तो So उनके okay, so he rules only क्या थे? started it. That's the thing. Was it like he only started your journey? Yes, I'll tell you. He started it because when we were in college itself, first year I think, first or second year of college, Yeah. he started an SIP for me Okay. from my account. Okay, sorry to cut. There are so many questions I have been asked. SIP और RD में क्या difference है? कोशिश करिए, बताइए. What difference है? Because अच्छा ठीक है, मेरे को फिर इसका explanation मिलता है कि SIP तो वही होता है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमारे बैंक से कट रहा है, और RD में भी वही सेम चीज है. But कहाँ जा रहा है? So yeah, that is fixed deposit. नहीं. No. So SIP का money is going into a mutual fund, which is getting put. So a mutual fund is eventually buying different stocks for you. Right. It's going in the market. तो interest rate क्या उसका ज़्यादा है as compared to RD? Yes. And No, can it is. You never call it an interest rate. You must Huh. understand. Whatever is done in the investment is called growth. Okay. Whatever is done in RD and FD, that is fixed interest, so it is called interest. So Okay. growth can be 2% and growth can be 20%. So, as I said, the risk is associated with the investment. But if the risk is there, why do we invest? हाँ. But as I said, there's a journey to be lived, and the principle is the risk and time are inversely proportional. Right. So today, when you invest, the risk is at the highest, and the moment you live this journey, you see the risk is low. I think it's like a graph of the age. Yeah. Right? So basically, what is happening is today you invest and the market crashed. Let's do the Suppose that. worst position. So your 1,000 rupees may be looking at maybe 300, 400. Hmm. But if I had invested 4 years before and market crashed, my 1,000 will be just about 800. So your 1,000 is just 300 and my 1,000 is 800 because I've already lived a journey and I have mitigated a lot of risk of mine. Do you want to actually tell your story at this point of My how story. he started? Because it's very relatable to this. You see, I think this is one story which can give the entire gist of investment. Okay. ये 2003 की बात है कि
मैं एक स्टेशन है कामटी नागपुर के पास, वहाँ पोस्टेड था। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते थे, तो उन्होंने एक दिन हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और वाइट बोर्ड पे उन्होंने 2 लाइनें ड्रॉ करी। 2 lines he drew, one was 15 degree, the other was almost 70 degrees. This way, basically. Yeah. So initially the gap was just about 6 inches. Here the gap is 1.5 feet. Okay. So he says the lower line is your income, upper line is your expense, and with the time the gap is increasing. Right. How will you make your money work that this gap is bridged as much as possible? तो उसका फायदा क्या हुआ, उनको भी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, बट डिसेंट थी, तो उन्होंने हमें म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किए। और हमारे साथ ये दिक्कत थी, हम ऐसी यूनिट में काम कर रहे थे जहाँ इंटरनेट बैन था, जहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप में कोई भी पेन ड्राइव कुछ एक्सटर्नल चीज़ नहीं लगा सकते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। Right. तो हम सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ सकते थे। तो मैंने 10,000 की SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन हर महीने मेरी तनख्वाह से कटेंगे Right. और वो म्यूचुअल फंड में जाएंगे शुरू करी। अब आप पूछिए, मेरी टेक होम सैलरी एज यंग मेजर वाज Okay. जस्ट 32,000 रुपीज, और मैंने 10,000 की SIP यानी 1/3 ऑफ माई सैलरी आई पुट इन दी SIP। Yeah. जब एल्डर डॉटर आयशी वाज इन आई थिंक 6th स्टैंडर्ड एंड शी वाज इन 2nd स्टैंडर्ड। So school fees, सब कुछ। घर का और expense. आर्मी में एक खासियत होती है, आपका मेस बिल आपकी तनख्वाह से 50% के आसपास मेस बिल जाता है। वी स्टार्टेड दिस जर्नी, और हमारे घर में रोज तो नहीं बोलूंगा, हर शायद 15 दिन में और 1 महीने में लड़ाई होती थी, खाना खा लें या SIP खा लें। और मैं बोलता था अब तो SIP ही खाएंगे। बट यू सी आई लिव दैट विद अ डिफिकल्टी। तो 2003 में ये जर्नी शुरू हुई। 2008 एक पूरे वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका था। Right. सब प्राइम, लेमन ब्रदर्स फेल and the market crash from 20,000 to 7,900. Almost market 50% से ज़्यादा crash हो चुका था। My investment that time after 5 years, जबकि मैंने आपको क्या बोला, risk and time are inversely proportional. Absolutely. हाँ. Even after 5 years, my investment was -27%. Minus 20. -27%. It is a huge amount. It is huge amount. And How were aunty the से- people who आंटी से गाली पड़ी थी। ये चीजें नहीं बताई जाती है उस समय। इन चीजों को अंडर द कार्पेट रखा जाता है जब तक ऐसी सिचुएशन होती है। Oh. अच्छा फिर तो- घर आए थे कि नहीं आए थे, या भाई नहीं, भाई नहीं। सही। मैं फौजी था भाई, मैं सब कुछ सीने पे लेता हूँ। आई डोंट शो माई बैक, ओके। सो आई टोल्ड हर दिस इज द सिचुएशन, एंड यू सी ड्यूरिंग दिस जर्नी आई प्रिपेयर्ड हर आल्सो। Right. तो जब -26-27% था, लेकिन मैंने रियलाइज किया जिन्होंने 1-2 साल पहले किया था वो -50-60% पे बैठे हुए। Okay. Then I realized that I'm in very happy situation. But the market in 2008 crashed to 7,900 and slowly when started moving to upwards. So 20,000 से 7,900 और 7,900 से 22,000 2011 में, कितने साल में? 2 साल के अंदर। तो ये देखा है हमेशा कि मार्केट जब भी करता है 1.5 से 2 साल में पिछले हाई को क्रॉस करके नेक्स्ट हाई बनाता है, पर वो जर्नी बहुत मुश्किल होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी टू सी योर इन्वेस्टमेंट नेगेटिव। Absolutely. Let's just recap now. So first, एक तो फैमिली डिस्कशन फाइनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो हमें बचपन से ही आई थिंक हमारे वाइफ्स और बच्चों में DNA में डाल देना चाहिए। जो भी जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले से ही शेयर करो, सो दैट कोई कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। और एल्स दीज डेज आई फील हमारी जनरेशन वी विल बी एबल टू मे बी गाइड आवर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज सोशल मीडिया से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल ठीक बात, राइट। बिल्कुल ठीक बात। सेकेंडली, रिस्क जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो और प्रॉफिट में रह पाएंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। बट क्या होता क्या है, रिस्क को समझने में टाइम लगता है। रिस्क नाम ही ऐसा है कि रिस्क लग रहा है। हाँ, तो रिस्क को समझने में टाइम लगता है। Patience. मैं आपको कितना भी बोल दूं रिस्क, लेकिन जब एक्चुअली होता है तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती उस समय। Yes. कि ही इज द पर्सन हु सजेस्टेड टुडे माय इन्वेस्टमेंट इज माइनस, वेयर ही इज ब्रॉट अस टू।
हम लोग ज़्यादातर चाचा और तायास पे बिलीव करते हैं बिकॉज आई थिंक उनके साथ हमने बचपन बिताया है, तो जो वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, फिर भी नुकसान होता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई थिंक ऑल ओवर द पब्लिक हुआ होगा। आपके साथ भी शायद कभी हुआ होगा, बट आई थिंक आपके साथ नहीं हुआ होगा। यू आर ऑलरेडी He was the चाचा और ताऊ. नहीं, मेरे केस में शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही गाइडेंस दी है सब। पता नहीं, पर शायद जब से मैं इंडियन आर्मी में भी था तो लोग मेरे पास आते थे कुछ ना कुछ फाइनेंस की गाइडेंस लेने के लिए। शायद मैं पैसे को अच्छे से हैंडल करता था। मुझे शायद जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं मिला हो, या मैं डिसिप्लिन में रहा कि ये मेरे हद में नहीं है, जब हद में होगा तब मैं लूंगा। और शायद उस सिस्टम ने मेरे जीवन में बहुत शांति रखी। और हमें ये सीखने की जरूरत है। आज की जनरेशन जो है बहुत तेजी से भाग रही है। भागो, भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे भागो कि गिरो मत. एकदम से गिरो और गड्ढे में गिरो। हाँ, ऐसे भागो कि धीरे धीरे भागो और अपनी उस जर्नी को समेटो। देखो जिस तरह तुम भाग रहे हो, क्या बाकी चीजें तुम्हारे साथ उस स्टेप चल में, उस रही सिंक में चल रही है कि नहीं चल रही? आजकल हम जैसी जनरेशन, हम हमेशा पहले के ज़माने में कहते थे पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है, बट अब तो हम कहते हैं हमारे तो लंबे पैर हैं या हमें फैल के बैठना है, हमें तो चादर उतनी बड़ी चाहिए। तो क्या वो सही है? सही और गलत में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज क्या है, फर्क कहाँ हुआ है। हम लोग को, मुझे याद है, आई डोंट नो कितना रिलेवेंट है ये, जब मैं 12th में था तो मेरी पहली फुल पैंट बनी थी। नहीं तो हाफ पैंट ही बनती थी। हाफ पैंट ही बनती थी। Was it the money constraint? मनी कंस्ट्रेंट। जबकि मेरे फादर क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे, तो भी हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो हम उस बैकग्राउंड से आए हैं। आप लोग का बैकग्राउंड क्या है? हमने एक फाउंडेशन बनाई है, उसके बाद आप आए। तो हुआ क्या है, उससे आपने एक कुछ सर्टेन लेवल दिखा है हमारा चारों तरफ, तो आपको लगता है कि इससे ऊपर ही जाना है हमें। अब आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी चादर कितनी बड़ी है। See, I think I'll tell you something. What happened? But like I said, I took that 1 year off ना जब. तो पापा ऐसे ये मतलब क्या कर रहे हो तुम, पैसे नहीं कमा रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब. तो बट मैं आई ऑलवेज से मेरे लिए इजी क्यों था वो डिसीजन लेना, इवन इफ मेरे पास आई वाज अर्निंग वेरी लेस मनी, बिकॉज You had savings. yeah, not savings, I had a home, I knew I had someone to depend on. When my father was my age, he could not have probably thought कि मैं एक साल कुछ ना करूं और सिर्फ एक्सप्लोर करूं. उनके Very पास ये good ऑप्शन point, नहीं Ravi. था, Yes. क्योंकि हमारी बेसिक नेसेसिटीज हमेशा मीट हुई. Right. तो फिर यू नो, बट इन दैट केस हमारा अबिलिटी टू टेक रिस्क इज अ लॉट मोर बिकॉज ऑफ दैट, फाइनेंशियली ऑल्सो एंड ड्रीम्स ऑल्सो. Right. इसलिए इट्स ईजियर फॉर अस टू ड्रीम. Now I actually understand and get the point because I have seen how my grandfather has actually made a platform and then my father has made a platform. Yes. Definitely I can agree that you know एक वो comfort zone है, एक वो reliability है कि हमें इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, उतना तो है ही, right? तो उसके ऊपर ही जाना है. तभी हम हमेशा सोचते हैं कि हमेशा और पैर करना फैलाने है. चाहिए. देखो क्या होता है, आप मुझसे आज बोलोगे कि आप एक मोबाइल फोन खरीद दो 1 लाख रुपए का, मैं कितनी भी कोशिश करूंगा मेरा हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उस तरह से वायर्ड नहीं हूँ. Right. ठीक है, मुझे लगता है शायद वो वेस्टेज होगी, लेकिन अगर आपसे बोलूं तो आप जरूर खरीदना चाहोगे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस यू हैव. ऐसा बेस बना है कि आपको लगता है नहीं ये शायद हम कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं. तो आपकी चादर तब तक डिफाइन नहीं है जब तक आप खुद कमा करके इंडिपेंडेंटली रहने नहीं चले जाते. ये अश्मिका ज्यादा अच्छे से बता पाएगी क्योंकि ये 6 साल बॉम्बे रही है, और शायद आप भी रहे हो. तो उस समय में जो कितना मिलता था और आप कैसी जिंदगी जीते थे, आप रिलेट कर सकते हो. So now coming back to you, first I want to know when you were in Goa, how did you survive? So at times he did give me money. It's not like he never did. I was still paying rent for my flat in Bombay. You were still paying flat, like you were staying in Bombay? I was staying in Bombay. I used to do to and fro Goa, Delhi, इधर Okay. उधर, because मेरे को पता नहीं था मुझे फाइनली कहाँ जाना है.
तो उस टाइम ही वुड गिव मी सम मनी व्हेनेवर आई वाज इन लाइक अ टोटल क्रंच, बट अदरवाइज जो मैं कर रही थी उससे कभी कभी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे. उसके अलावा आई वाज ईटिंग अप इनटू माय सेविंग्स. मैं म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कर रही थी. मैंने आई थिंक 1.5-2 लाख किए होंगे So विड्रॉ. is it easy to withdraw funds You from? see, Not when your anytime- father is an investment advisor. I used to get You see- yelled at. you see- Generally for you see, वो people. पैसा जो म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट में होता है बहुत लिक्विड होता है. Okay. आज आप विड्रॉ करेंगे, थर्ड डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. Okay. ये खासियत है इस पूरे इन्वेस्टमेंट की. इट इज वेरी वेरी लिक्विड फॉर्म. बट क्या ऐसे विड्रॉ करना चाहिए, वो डिबेटेबल है. और कब करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, उसके लिए भी एक डिसिप्लिन चाहिए. See again, I और वो think डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब आपके पास एडवाइजर हो. वो अदरवाइज भी- कभी नहीं आएगा. मैं आपके पैसे को ग्रोथ नहीं देता. आप बात को सुनिए. मैं आपके पैसे को ग्रोथ नहीं देता, मैं आपके पैसे को नहीं बढ़ाता. मैं सिर्फ एक चीज हैंडल करता हूँ, आपका Discipline. behavior. If I handle your behavior correctly, I can handle rest of the things, your finances very well. So the money will not give you growth, the market will not give you growth or degrowth. It is your behavior during the market Right. जो आपको growth देगा या नहीं देगा. हम एड्रेनल रश में बहुत बार फंड्स निकाल लेते हैं. Yes. यार वो बहुत अच्छा है एलवी का, वो ले लेते हैं. अब तो माय बर्थडे इज कमिंग, समथिंग लाइक दैट. बट देन व्हेन आई विल कॉल यू, कैन आई विथड्रॉ दैट, एंड देन बी लाइक नो, शट अप, डोंट विथड्रॉ But see, इट. that's what happened. मेरे को पैसे निकालने थे क्योंकि मुझे लगा कि अभी नहीं यूज करूंगी सेविंग्स तो तो कब कब करूंगी. And Papa's point was, this is not the time. You make money and you do something else. But for me, it was, no, I need this to figure out what I want to do in life. Again, that is subjective. To me, it is very important. To him, it was useless. वही वैल्यूज हम लोगों की अलग हैं बिकॉज हाँ. ऑफ द जनरेशनल गैप, Correct. एंड वी वांट लेजर. Yeah. लेजर, बट एटलीस्ट हमें लगता है कि हमारा माइंड सॉर्ट होना चाहिए. उन्हें We लगता है don't give so much. We give more importance to our mind than Yes, them. yes. That is the. They are also probably stronger mentally than us as a generation, I think. obviously because they have experiences, they have situations far worse than us. They Yeah. have faced situations Yeah. far worse than us, and we are तो ऊपर ऊपर का, and still we are हमें तो आज भी नहीं मालूम है मी टाइम क्या होता है. हमें आज भी नहीं मालूम है माई स्पेस क्या होता है. हम अभी भी ढूंढ रहे हैं वो स्पेस जो आप लोग को हमेशा चाहिए होती है. I think we both will agree that that me time is very important. Now that I stay in the house and I'm like, can you not come to my room? Can I just be? And he's like, what? What do you mean by that? You ये see, मेरा the घर है. problem in office you are a boss. At home you are back here. Yeah, I'm like, Very सारा difficult दिन I'm with situation. you. I don't want to be with you. So anyway, so this was on the lighter side. So the important जो आपने क्वेश्चन पूछा चादर का, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन में रहना. और एक बार अगर आप 5 से 7 साल डिसिप्लिन में रहना सीख गए, आपकी जिंदगी फाइनेंशियली हमेशा के लिए सॉर्टेड है. और This is a very important point, to stay in discipline. वेरी And इंपॉर्टेंट learning from a army person, I think वो आपके रगों में अब बस गया है. मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इस फील्ड में आया तो मैं पुरानी जितनी भी ट्रेनिंग थी अपनी वो साथ लेके आया और वो यहाँ वैल्यू ऐड कर रही है. एंड इट इज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द पीपल. एंड मेरे केस में मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए, लोगों के पोर्टफोलियो कितने भी उथल पुथल हो, 99% क्लाइंट की मेरे पास कॉल नहीं आती. रीजन मैंने आपका क्या बोला था आपको, मुझे आपका सिर्फ बिहेवियर मैनेज करना. Right. सो एज यू सेड कि मुझे पैसे निकालने हैं तो मेरी तरफ से डांट पड़ेगी. आई एम क्वाइट स्ट्रिक्ट. आई विल टेल यू कि आप ये गलत तरीका है, ऐसे पैसे मत निकालिए, ये सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. Right. ठीक है. लेकिन फिर बाद में मैं ये भी कहता हूँ पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है, एडवाइस मेरी है, अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है. तो ये जर्नी डिफिकल्ट है बट बहुत आसान भी है. हमें एक बार इस पथ पे चलना आना चाहिए. जैसे हम इस पे चलने लगेंगे शायद सुख ज्यादा होगा और दुख कम होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ. कोशिश तो करो. Right. आज की जनरेशन फिन इन्फ्लुएंसर्स और इतना सोशल मीडिया देखती है कि यहाँ इतनी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी भरी होती है कि पता ही नहीं है करना क्या है. नहीं, ये सही बात है. सो यू तभी तो हम अपना मी टाइम मांग रहे हैं, तभी तो हम अपना बोल रहे हैं स्पेस चाहिए, क्योंकि इतना सब भर गया है, इतना स्क्रॉलिंग हो रही है, रील्स हो रहा है,
इतना कुछ करने की इच्छा है बट समझ नहीं आ रहा कि पैसा कैसे जनरेट करें और उसको कैसे आई थिंक सेव करें एंड देन इन्वेस्ट करें. और उसके लिए जैसे हमने बचपन में टीचर की बहुत ज़रूरत होती है. टीचर हमें ABCD सिखा देते हैं, फिर हम अपने आप सेंटेंसेस बना लेते हैं. तो आई थिंक एटलीस्ट वो 5 to 7 ईयर्स की एक जर्नी एक फाइनेंशियल कोच के साथ इतनी ज़रूरी है कि एक बार आप हमें वो ABCD सिखा दो, उसके बाद शायद हम अपने आप वो रास्ता ढूंढ लेंगे और चल लेंगे और अपने आगे जनरेशन को भी सिखा पाएंगे, या फिर हमारी पुरानी जनरेशन को भी सिखा पाएंगे, दैट इज आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मे बी इन्वेस्ट वेर एवर आवर कोचेज आर सेइंग. मेरे केस में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि बेटे और बेटी के आने के बाद पेरेंट्स आए हैं. मेरे पास आज भी कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी एज 75 से 85 ईयर्स के बीच में, जिनका मैं इन्वेस्टमेंट आज भी कर रहा हूँ. उनको क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की? उनको एक ही जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, जो उनका कॉर्पस है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए और उस पर एक डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे कि वो ये डिसाइड करें इस कॉर्पस में से कितना मैं इस्तेमाल करूंगा, कितना मुझे अपने बच्चों को हैंड ओवर करना है. राइट. और ये मेरे से इंटरेक्शन के बाद वो समझ पाते हैं और इस पर एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाते हैं. तो ये जब आपके पास पैसा होता है तो आप खुद डिसीजन लेते हो. वो डिसीजन सही है गलत है वो तो समय बताता है. लेकिन आपके पास अगर कोई एडवाइजर है जो आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा है, वो शायद आपको जो रास्ता दिखाएगा वो आपके पूरे परिवार के हित में होगा. Absolutely. तो ये समझने की बात है, पर इसको समझने के लिए टाइम लगेगा. ये कल नहीं समझ में आ सकता. इसलिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, उसको सब कुछ बताते हैं, इसी तरह जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं तो उसको खुल के बताइए आपके पास क्या है, कहाँ है, आप क्या करते हो, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तक आपने क्या गलतियां करी हुई हैं और आगे आप इस पैसे से क्या करना चाहते हो. Right. क्या आपकी लाइफ आपके ब्रदर की लाइफ सेम है? No. Both have been reared by the same parents. But then we both have different lives. तो लाइफ टिपिकली कॉपी पेस्ट है क्या? हम लाइफ को ऐसे ही जीते हैं. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आपके पास SBI का स्टॉक है, शेयर है, अश्मिका के पास है और मेरे पास है. मेरे को 30% का लॉस है, अश्मिका को 40% का गेन है, आपको 100% गेन है. अब आपका फ्रेंड कोई आपके पास आता है और बोलता है मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कौन सा स्टॉक लूँ? तो आप क्या करेंगी? SBI ले लो, मुझे बहुत प्रॉफिट है. ठीक है. अश्मिका के पास आए, पूछे हाँ ठीक है मुझे भी डिसेंट प्रॉफिट है, मेरे पास आए, मेरे को हाथ भी मत लगाना, मुझे लॉस है. सो इट इज टिपिकली द पर्सनल एक्सपीरियंस विच वी आर गाइडिंग द अदर पर्सन. Right. बट क्या वो सही है? सही भी है और गलत भी है. सही क्यों है? अगर वो ठीक रहा तो उसको बहुत फायदा होगा, अगर नहीं रहा तो बहुत नुकसान होगा. तो राइट जो सही तरीका क्या है? हाँ, मेरे साथ एडवाइजर चाहिए जो ये बोले SBI का शेयर अच्छा है, लेकिन आज जिस रेट में है उसमें नहीं लेना है, इसको 50 रुपए और कम होने दो, तब लेना, तब तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा. बट क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऐसा करते हैं? नहीं, हम बहुत एड्रेनल रश में ले लेते हैं, यार आज तो ले ही लेते हैं, आज तो इन्वेस्ट करने का मूड है तो कर ही लेते हैं. तो वो Actually, सारे हाँ. रैशनल, सारे फंडामेंटल एंड द टेक्निकल्स, दे आर टेकन फॉर ए राइड फॉर टेकिंग ए इमोशनल डिसीजन. Right. इसीलिए इस जर्नी में कॉपी पेस्ट नहीं, एक एडवाइजर की जरूरत है जो आपका हैंड होल्ड करे थ्रू आउट दिस जर्नी. Absolutely understandable. I think our audience would also be cleared with this doubt कि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का इन्वेस्टमेंट प्लान अलग होता है, हर किसी के सेविंग्स भी अलग होते हैं. तो ऐसे ही हर किसी को अपने तरीके से सेविंग करनी चाहिए. ये नहीं कि तूने जहाँ इन्वेस्ट किया मैं भी वहाँ इन्वेस्ट करूँ. नो, वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन ओनली इन्वेस्ट. राइट. Time, and it's a debatable topic, but we must invest through an expert who can take you through like a protection in this journey of investment. Absolutely right. ये प्रोटेक्शन से मुझे वो याद आ गया कि कृष्ण जी को सांप ने प्रोटेक्ट किया था सबसे शेष नाग ज्यादा. ने, शेष नाग ने. So what is the right age to invest and maybe how people can start investing? हमें लगता है जो आया वो उड़ा देते हैं. Usually like you know generation maybe just starting their jobs around 22 to 28 वाले एज वाले लोग जो हैं,
जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे क्या करें? उनकी मैंने शायद पहले ही बताया आपको कि किस परसेंटेज से करना चाहिए, लेकिन अगर शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको, आप एक छोटे अमाउंट से अपनी जर्नी शुरू करो। क्या हमें म्यूचुअल, या क्या लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या व्हाट ऑल आर द क्राइटेरियाज? मे बी अगर छोटे में कर रहे हैं तो एफडी करें, म्यूचुअल फंड करें, क्या, व्हाट इज इट, व्हाट वुड यू You सजेस्ट? see, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी इस जर्नी में किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उसको जानने के लिए ये देखना है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट या सेविंग से फ्यूचर में क्या चाहिए। ओके, सो अगर हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट अपनी जर्नी फिक्स डिपॉजिट से ही शुरू करनी चाहिए, आरडी से शुरू करनी चाहिए, पर शुरू करनी चाहिए पहली बात। ओके, But I पहली बात। think SIP is the answer to that. आई एम कमिंग टू हाँ। दैट, बिकॉज होता क्या है कि पूरे इस प्रकरण में जहां हम अपने पैसे को सेविंग से बचा के इन्वेस्टमेंट पे लेना चाहते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल काम करता है वो है इन्फ्लेशन। हम्म। अब इन्फ्लेशन क्या है? टिपिकली हम बोले तो महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी आज जो चीज 1000 की मिल रही है वो 1 साल बाद 1050 रुपए की मिलेगी। तो क्या आपका पैसा जो आज इसकी वैल्यू 1000 है, 1 साल के बाद 1050 पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? और ईयर ऑन ईयर ये करना पड़ेगा, तब वैल्यू ऑफ 10,000 विल रिमेन 10,000 एट वॉट एवर ईयर यू वांट टू रियली Use that money. यूज दैट मनी। या तो कैसे बीट करें इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन कितना होता है जिंदगी में? देखिए, गवर्नमेंट टिपिकली अनाउंस करती है 5 से 7% इन्फ्लेशन, और वो करेक्ट भी है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में इन्फ्लेशन अलग अलग स्टेजेस पे अलग तरह इम्पैक्ट करता है। ओके, जैसे एजुकेशन इन्फ्लेशन करीब 13 से 15% होता है, उससे ज़्यादा भी होता है कई जगह। हेल्थ इन्फ्लेशन और मेडिकल इन्फ्लेशन इज अराउंड 15 to 20%। पेट्रोलियम इन्फ्लेशन अबाउट 9 to 12%। अगर इन सबको एवरेज करें तो इन्फ्लेशन आपकी लाइफ में 9.5 से 11.5% के एवरेज पे इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स द करंट इन्फ्लेशन रेट। नो, करेंट इन्फ्लेशन रेट इज 5 to 6% ओनली। हम उसी को ही लेके चलेंगे। उसी को लेके चलेंगे। लेकिन आपकी आज एजुकेशन पूरी नहीं है, आपको कुछ फर्दर एजुकेशन करनी है, तो उस पीरियड में जब तक आप फीस दे रहे हैं, आपके लिए इन्फ्लेशन शायद 9% हो रखा है। आपके घर में कोई बीमार है और वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, अगर उसका खर्चा है तो आपके लिए इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन प्लस मेडिकल इन्फ्लेशन का जो एवरेज है वो चल रहा है। राइट, समझ। बट हम क्या करते हैं, टिपिकली इन्फ्लेशन को 5-6% पे हैंडल करते हैं। नहीं, इन्फ्लेशन को हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि मेरे जीवन में इन्फ्लेशन जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है उससे 3 से 4% ज़्यादा ही है, बिकॉज हम अलग अलग स्टेज पे Right. अलग अलग इन्फ्लेशन को इनकाउंटर करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो अगर किसी का भी बच्चा स्कूल जाने वाला है तो उसके लिए एजुकेशनल इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। एब्सोल्युटली। किसी के घर में बीमार है तो वो हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल इन्फ्लेशन। ओके, एग्रीड। बट क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे अलाइन करते हैं? नॉर्मली नहीं। तो जैसे आपने बोला किस तरह से शुरू करें, मैंने बोला एफडी शुरू करो और जानो। बट क्या होता है, एफडी से आप कुछ सीख नहीं सकते अदर देन कि हाँ कुछ सेव कर रहे हैं और आप खुश हैं, उससे इन्फ्लेशन बीट नहीं होता। एफडी टिपिकली आपको एफडी और आरडी 5 से 6% इंटरेस्ट देते हैं, और उससे आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, बट द मोमेंट यू टेक द जर्नी इनटू एसआईपी और लमसम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और बॉन्ड्स, कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स हैं जो आपको 10 से 11% इंटरेस्ट भी देते हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी जो 8 से 9% इंटरेस्ट देते हैं। एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीट ना करें, इन्फ्लेशन के बराबर तो हैं, एटलीस्ट वैल्यू ऑफ मनी इज प्रोटेक्टेड। तो आपको सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में एसआईपी की थ्रू जर्नी शुरू करनी चाहिए। ओके, तो टिपिकली मैंने बोला, अगर आप सिंगल हैं और आप अलग रह रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, तो आप 30 से 40% के बीच में सेव करिए, और उस अमाउंट का 80% इन्वेस्ट करिए, और 20% को आप इमरजेंसी और शॉर्ट एंड मिड टर्म बास्केट में डालिए। तो टिपिकली ये जर्नी आपको सिखाती है कि आप इस तरह से जीने में क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म बास्केट है उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे,
क्योंकि शॉर्ट एंड मिड टर्म बास्केट भी साथ साथ क्रिएट हो रही है. लेकिन ये क्या तुरंत हो जाएगी? नहीं. इसके लिए भी 6-7 साल की जर्नी जीनी पड़ेगी. तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और आप मुझसे एज पूछ रहे थे, मेरे पास 2 साल की बच्ची से लेकर के 87 साल की मेरी खुद की माँ है जिनका इन्वेस्टमेंट मेरे पास है. तो एज कौन सी करेक्ट है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अर्लियर यू डू इट द बेटर रिटर्न यू हैव. सेकेंड, मैंने बताया था रिस्क एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट. आज आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर एट द हाईएस्ट रिस्क. 5-6 ईयर्स के बाद वो रिस्क ऑलमोस्ट मिटिगेट हो जाता है. ऑलमोस्ट, खत्म नहीं होता है but almost mitigate. I think Ashmika has the greatest example. She was showing her portfolio to me, where जैसे वो maths में हम लोग hence proved करते थे. So this can you elaborate that? Yeah, so situation? basically I've been investing for almost 5 years now. My invested value is around 7,30,000. And ये आपने टुकड़ों में डाले या फिर आपने So like I said, my father had already started for me when I was in second year of college. He had done an SIP for me, 20,000 ki I think, and he used to pay for it. But the moment I started earning or I did my first project as an intern, I started paying for that to some extent, and eventually slowly I was taking care of the entire SIP. It's the journey of how long? Almost 6 5 years. 5 years. So but what that did is that it made a habit for me very early on. Since my first salary only, I had the habit of deducting money. I knew कि अरे यार इतने पैसे तो कटने ही हैं, तो जो भी पैसे हैं उसमें से मेरे पास इतना ही बचा है. So I was spending what was left after investing. But हम क्या करते हैं कि we spend money and then what is left we invested. So yeah, so then I almost managed to invest around 7,30,000, and today my investment is standing at around 14 lakhs. So that's actually double the amount. Yeah, almost. And I in like you was in 5 years. yeah, 4.5 5 years. And I have also withdrawn money from it in between. So it's not like I think lakh and a half you withdrew. Almost 2 lakhs I withdrew. So you see that would have been now another maybe 2 lakh withdrawn should have been 3 lakh. So this 14 would have been 17 or 18. Absolutely. But yeah, so like you said, comparison, why time is important is I have a friend who has an invested value of more than me, around 7.5 lakhs, but his investment is standing at around 10 lakhs because the duration that he's lived is much lesser than mine. Yeah. So it doesn't matter how much you've invested, it's about how long you've been investing. Yes. So time is very important. Yeah. And Also, definitely the case is being proved that you have invested for a longer time and you got more profits because you were disciplined to invest in the same thing, and the time played a very big role. And here I think he or she invested only for 2 years or 1.5 years, and that to double the amount, and he just got the profit of 3 lakhs. So time is absolutely, time is the essence. Time is the essence. Also, like I said, like you've been asking him how much to start investing. What happens is when you are in between 18 to 22, you end up doing a lot of internships and you get some kind of stipend. Even if it's 10,000 a month, start with at least investing 1,000 rupees, and I think the remaining 9,000 is enough for you to party, shop, travel, etc. You can do all of that with it. What people feel is it's my money, I don't have, I can spend all of it, why should I invest or why should I save? But just starting with that small amount is not going to pinch you, and you won't even know when you've managed to save so much. I think these days we should actually guide people that a goal hona bahut important hai, and once the goal is being clear, then they can start putting all the energy and everything to that one goal. So that 1,000 rupees would also be adding to that goal, and they might like achieve that goal within jo ek insan ko goal 10 साल में अचीव करना था, he or she will be able to achieve it within 5 years. Yeah. But initially it's very difficult to figure out the goal. So till you get to that point, don't wait for yourself to find the goal and then invest. So basically around 18 to 20 years of age, they should just start investing. Don't think of XYZ, बस अभी invest करो, बाकी उनको उनके profits और answers I think within the long run मिल जाएंगे. How he said कि पहले अभी take the risk and just start investing, and time will tell how much you have done the profits. Right? Is it like that? Yes, sort of. Okay, great. So can you let's just dig deep into finance, and can you elaborate finance and principles of finance क्या होते हैं?
अगर किसी को हार्डकोर इन्वेस्टमेंट करनी है एंड नाउ ही इज रेडी टू डू इट, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है इन्वेस्ट करने में अदर देन म्यूचुअल फंड्स? यू सी, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए। उस एडवाइज़र के थ्रू वो आपकी एक पहले केवाईसी करेगा। नो योर क्लाइंट, देयर इज अ फॉर्म एंड ऑनलाइन केवाईसी इज डन। इन्वेस्टमेंट केवाईसी वो डिफरेंट होती है बैंक केवाईसी से। अभी इस देश में पूरी सिंगल केवाईसी नहीं है, तो पहले वो केवाईसी होगी। केवाईसी के बाद ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा। ऑनलाइन अकाउंट खुलने के बाद आपका बैंक अकाउंट उसके साथ मैप होगा, जिससे आप चाहे वो इन्वेस्टमेंट लमसम करें या एसआईपी करें, वो ऑटोमेटिकली थ्रू दैट बैंक इट कैन बी पिक्ड अप। बैंक लिंक होना ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होगा। आज की डेट में 99% इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन होते हैं। फिजिकल मोड है बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऑनलाइन मोड बहुत आसान है। उसके लिए आपका पैन, आपका आधार या एड्रेस प्रूफ, आपका कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनीज पैन कार्ड। एनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स द नॉमिनेशन, तो उसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जबकि आज की डेट में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको ये ऑप्शन देता है कि आप बिना नॉमिनी के भी इन्वेस्टमेंट करें, बट अगर आपके केस में नॉमिनी बहुत क्लियर कट है तो नॉमिनी ज़रूर लगाएं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉमिनी। तो आई विल जस्ट रिपीट अगेन, आपको आपकी केवाईसी होगी, ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कमेंस होगी। तो ये प्रोसेस इनिशियली कि हाउ टू स्टार्ट दी जर्नी। बाकी कितना सेव करना है कितना नहीं करना उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। नाउ इट कम्स टू दी 5 प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी हैं इस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट है सेविंग्स बहुत मुश्किल से होती है, तो सेविंग्स हैपन विद लिटिल डिफिकल्टी। तो वो डिफिकल्टी अडेप्ट करनी है। कैसे करनी है? अगर आप आसानी से महीने में 10,000 रुपये सेव कर सकते हैं तो आप 12 करिए, 15 करिए। वो 2,000 या 5,000 आपको उस महीने चुभने चाहिए कि ये नहीं, मेरे पॉकेट से नहीं जाना चाहिए था। दैट इज द रियल इन्वेस्टमेंट। आप जितना कर रहे हैं कंफर्टेबली उससे थोड़ा ज्यादा, वो थोड़ा ज्यादा आपको एक बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा फ्यूचर में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेविंग्स हैपन विद लिटिल डिफिकल्टी, तो वो डिफिकल्टी अपनाइए। सेकेंड प्रिंसिपल इज करेज टू सी इन्वेस्टमेंट टर्न नेगेटिव। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए आपके अपने इन्वेस्टमेंट और पैसे को माइनस, यानी जितना इन्वेस्ट किया उससे कम देखने की। अगर वो नहीं है तब इसमें घुसने के लिए अपने आप को तैयार करिए। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे लाइफ की जर्नी रोलर कोस्टर है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी जर्नी रोलर कोस्टर है। रिस्क यहाँ है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब आप एक जर्नी जीते हैं तो रिस्क कम होता जाता है। तो आपके पास ये करेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव देखने की। थर्ड प्रिंसिपल है पेशेंस एंड डिसिप्लिन, यानी आपके पास वो धैर्य होना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन, अगर मार्केट अच्छा है और बहुत अच्छा है तो उससे खुश होकर के निकालने की जरूरत नहीं है। मार्केट खराब है, नेगेटिव है, तो वो अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। यानी जो चीज़ 100 रुपए की थी आज वो 80 रुपए की मिल रही है। आप जब मार्केट में डिस्काउंट्स लगता है साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, भाग करके खूब शॉपिंग करते हो, ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में शॉपिंग का टाइम है। लेकिन मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल होता है। तो पेशेंस रखना है, जब ऐसी सिचुएशन है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। डिसिप्लिन मतलब अगर आपका 10,000 की आपकी एसआईपी चल रही है और मार्केट ऐसा डाउन है तो उस एसआईपी को रोकना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रिंसिपल इज रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट 18 to 24 मंथ्स। वो मेरा काम है, जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको रिव्यू करता हूँ, आपके इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल है। यानी अगर आप आज उदाहरण दें तो रियल स्टेट आज से 5 साल पहले बिल्कुल बैठी हुई थी, आज बहुत ज़्यादा चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ग्रोथ हो रही है। इसी तरह अगर आप बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, आज से 5 साल पहले कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन आज सब उस तरफ जा रहे हैं। तो
जो साइकिल है, हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है इस तरह से करना है कि वो हर साइकिल को प्रोटेक्टेड रखे। होगी नहीं, बट अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है, इवन विद इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, वो भी हमारी साइकिल को प्रोटेक्ट करता है। इसको मैं छोटे समय में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट करेंगे, मेरे साथ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी ये जर्नी इस तरह की होनी चाहिए कि आपका डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करे। ओके, फिफ्थ प्रिंसिपल इज लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जो आप अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। यानी जब मैंने बोला करेज टू सी इन्वेस्टमेंट टर्न नेगेटिव, सेकंड प्रिंसिपल, एंड लास्ट प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी हर इन्वेस्टमेंट पे गोल होना चाहिए। अब मैं ये बोल सकता हूं, या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर ये बोल सकता है, अगर आप ये दोनों चीजें मानेंगे तो आपका प्रिंसिपल और आपकी ग्रोथ कहीं नहीं जाएगी। कैसे? अगर आपको पता है आपको पैसे कब निकालने हैं, यानी आपका गोल आइडेंटिफाइड है, तो मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया आज आप कुछ पैसे लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर, मान लीजिए 50,000 की SIP चल रही है, उसमें 20,000 की SIP से आपको 10 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो यानी अब उस गोल को भी मॉनिटर करना है, अदर देन 18 to 24 मंथ्स रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ऐसा सोचना है, गोल को 3 साल पहले आइडेंटिफाई करके उस पर बात करनी चाहिए। यानी अगर हम आज 24 पे बैठे हैं, 2034 विल बी योर गोल, सो 3 years बिफोर, यानी 2031 विल रिव्यू द गोल वेरी क्लोजली। अगर वो चीज़ 20 लाख रुपए होना है वो इन्वेस्टमेंट, तो यानी 3 साल पहले वो करीब 15-16 लाख होगा, तभी शायद 20 लाख हो पाएगा। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट कैसा है। मान लीजिए वो 15 लाख है और अगले 6 महीने मार्केट ठीक है, हम हर महीने देखेंगे अब उस गोल को। 6 महीने तक मार्केट ठीक है, 15 का 16-17 लाख हो गया, और अब हमें लग रहा है मार्केट डाउन होने की उम्मीद है, तो हम उस पैसे को निकालेंगे और उस समय जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है, भले ही FD उसमें डाल देंगे। अगले 2.5 साल वो 16-17 लाख शायद 18-19 लाख होंगे, आपको 20 लाख चाहिए, यानी आपका गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। 1-8 लाख का गैप अपने पास से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब 2034 में आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे बिना रिव्यू किए हुए, और उस समय मार्केट डाउन हुआ, तो आपके 20 लाख शायद 10 लाख पे खड़े होंगे, आपका गोल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इससे बहुत बहुत क्लियरली हमें पता चलता है कि रिव्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स। एंड इससे ये भी पता चलता है हमें कब निकालने हैं और कब डालने हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अब हमने डाल तो दिए, ये नहीं पता कब निकालने हैं, बिकॉज इसलिए नहीं पता बिकॉज वी डोंट नो, वी वर नॉट अवेयर रिव्यूइंग के बारे में। रिव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। व्हाट इज द मेथड? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड एवरी इन्वेस्टमेंट, इफ इनिशियली जब हम करते हैं, हमें शायद गोल का आइडिया नहीं होता है, लेकिन 1 से 2 साल में आपको पता नहीं लगने लगता है कि आपका गोल क्या है, और आपको उस पैसे को उस गोल से अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस इंडस्ट्री से ठीक से ग्रोथ और प्रॉफिट कमा सकते हैं। we are pretty clear when and how to take out and invest. Yes. Thank you so much. I think we have covered most probably all the questions. I would like to, the last few questions. That is, if somebody is a single parent or already retired, उनको कैसे इन्वेस्ट करने हैं? जब उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किए, अब उनको समझ आया है कि जो भी पेंशन आ रही है, अब क्या करें उस पेंशन? देखो, अभी पहले ये देखना है कि आपकी इस समय जो स्थिति है वो क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, आगे आने वाले समय में लायबिलिटी क्या है, उस पे बात कर सकते हैं। बड़ा बिल्कुल मैं इस पर आपको क्लियर कट आंसर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिविजुअल को ये जानना है कि आज उसके पास इतने पैसे हैं, क्या वो सफाइज होंगे, क्योंकि लाइफ का पता नहीं है कब तक चलेगी, कितनी चलेगी। सिंगल पेरेंट है तो क्या वो जो बच्चा है वो नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसकी एजुकेशन बाकी है। सो इन सब चीज़ों पे, तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। शायद इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर नहीं होगा, लेकिन ये मैं बता सकता हूं, हर एज में और हर सिचुएशन में हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं।
लेकिन हर केस को इंडिविजुअली और डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा. राइट, बिकॉज ये कॉपी पेस्ट का जमाना नहीं है. एवरीबडी हैज द डिफरेंट बुक. Yes, हर yes. किसी की लाइफ की डिफरेंट बुक है, हर किसी के डिफरेंट सेविंग्स और या इन्वेस्टमेंट्स. अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अगर हम देखें कि वो क्या कर सकता है, तो मान लीजिए सिंगल पेरेंट है, बच्चे ने अभी अपनी school एजुकेशन, going, हाँ school स्कूल गोइंग है, तो अभी एजुकेशन के लिए पैसे होने चाहिए, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पैसे होने चाहिए. तो क्या वो अपने बच्चे को पहले से ही स्टार्ट नहीं करा सकते कि उसकी पॉकेट मनी से ही वो इन्वेस्ट करना या सेव करना स्टार्ट कर? किसी किसी को So किसी that- भी स्टेज पे आप सिखा सकते हैं, लेकिन परेशानी सबसे बड़ी क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट कब आना है. अगर इनपुट थोड़ा है तो आउटपुट के लिए लंबी जर्नी है, अगर इनपुट ज़्यादा है तो भी आउटपुट के लिए जर्नी लंबी है, लेकिन वो शायद उतनी लंबी नहीं होगी. सो इफ यू हैव लेस टाइम you have to invest more. If you have more time, you can even invest less. Right. तो अगर ये अभी- सीखने की जरूरत है. अभी एज बिटवीन आई से 15 टू 22 है, तो उनके पास टाइम ज्यादा है. अगर वो कम इन्वेस्टमेंट भी करें, स्टिल दे विल बी ऑन सेफर साइड एंड प्रॉफिट्स, एंड उनको शायद लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे अपने मास्टर डिग्री के लिए या कुछ भी. राइट. और अगर एज किसी की ऑलरेडी 35-40 है, सो दे नीड टू start investing prior, something like that. You see, Also, do you want to just explain how starting an SIP of 1,000 rupees when the child is born can become at 18? हाँ, you see, आप क्या करना क्या है, हम बोलते हैं you adopt when your child is born, you adopt a child. Okay, so you adopt a child what? Basically, आप 1,000 की SIP कर लीजिए और उसको आप adopt कर लीजिए. यानी वो अडॉप्टेड चाइल्ड आपको, आपके बच्चे को 20 या 25 साल की जर्नी में लुक आफ्टर कर लेगा. दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इट गोज, ऑल्दो आई प्रीमेच्योरली टोल्ड यू अडॉप्ट, बट व्हाट वी से इज दैट you do a investment of 1,000 rupees. After 25 years, you'll realize that the 3,000 rupees SIP in 25 years becomes a crore. Can you believe it? So 1,000 rupees in 25 years will be still very sizable amount. But will that be sizable after 25 years? Depends how much is the inflation and what is the requirement. Today education is 25 lakh. After 25 years the education will be maybe 2 crores, 3 crores, 5 crores, nobody knows. So you see, everything is relative. So you have to start early. If you've not been able to start early, start whenever you are in a position to start, and have the advisor who can do the hand holding during this journey, and he will tell you, you are falling short of this much, now add this much. Whether you are capable or not, at least you will always be conscious to add some money. So this will bring in the system and the thought process towards the investment journey. That is how you'll be able to fulfill all your goals. So it is very difficult and sacrosanct, but yes, earlier the best. Mid-age, you have to move little faster. Later age, probably you have to run the marathon. Absolutely great example. The last question these days, who is getting married, how, and they're thinking of their future, maybe to have a child, how they can start so early so that they don't feel burdened once the child is born, and the medical fees, then vaccinations, because these days vaccinations are also very expensive, 24,000 or something, that's the cost. So how they can beat the inflation in that? You see, for the medical and for the own life protection, you need to have insurance. So there are two kind of insurance which are very, very important. That is health insurance or medical insurance, and second is the life insurance. One must understand insurance is an expense. Okay. Okay. You don't try and combine insurance with an investment. Lot of people want some money, like typical LIC. It gives you bonus and the further bonus. I'm not saying it is wrong, but you must identify what is the purpose. So when you try to get something from insurance, then typically
neither you get the correct amount of quantum of insurance nor you get the better investment opportunity. So, the typically such insurance where you get some benefit later, they give you 10 times of premium value of insurance. Say you have a 1 lakh rupees premium, you will get 10 lakh rupees of insurance. Is 10 lakh adequate of insurance or not? But if you say take this plain and simple vanilla insurance, where probably at your age 1 crore insurance will probably be just about maybe 10,000 rupees. Right. And here 1 lakh is giving you 10 lakh insurance. Look at the difference. So, please do health insurance for the purpose of the children and for your family, for the future medical needs, and for your own protection you need to have life insurance, that is a plain term insurance, because it is very, very important when you are not there, your family should be protected, should be able to lead the same financially independent life. So, you are covered, you are not there, they get adequate finances so that they are able to look after their life. Yes. So, both this are very, very important. When you talked about vaccination and all this, let me tell you very openly, most of the policy do not cover the vaccination. Okay, but normal health problem, if you are admitted for 24 hours, most of them are covered. And when you take the early health insurance and you paid the premiums for 4 years and beyond, none of the insurance company can ever reject your claims. You see, सबसे important ये है कि आप अपनी investment journey को शुरू करिए. And the second in, when you start doing the investment journey, you make sure हर साल जैसे आप grow करते हैं, उसी तरह investment को भी grow करना है. यानी if your growth is about 10 to 20%, you keep increasing your investment in the same ratio. You will find आपकी growth से, जो आपके investment की growth है, आपकी personal growth से दुगनी होगी if you follow this step. This is absolutely important to do that. Your investment should be part of your life throughout as your kid is. That's the best tip what everyone can get. I think we're done with this. Thanks a lot. It was great connecting with you both. I hope a lot of luck to your firm. And at least I gained a lot of knowledge, and I hope the audience as well. Thanks a lot. It was great connecting with you.